Now, today we'll discuss new topic of chapter chemical bonding, covalent bond. So first question of this chapter is what is a covalent bond? Ionic bond we have discussed, and now today we'll discuss new topic, what is a covalent bond. So non-metal elements just need one or two electrons to fill their outer shells. ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स मीन्स फॉर एग्जांपल आपके हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे जस्ट नीड वन और टू इलेक्ट्रॉन्स टू फिल देयर आउटर शेल्स. ठीक है स्टूडेंट. सो हाउ डू दे फॉर्म ए बॉन्ड, कह रहा है वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लोरीन, क्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. so chlorine needs only one electron to complete its octet. ठीक है स्टूडेंट. नाउ 5 + 2 7 and chlorine needs one electron to complete its octet. so this is a last unpaired electron. This is a last unpaired electron. This is a one chlorine atom and this is of another chlorine atom. In one chlorine atom we shows the electrons in spheres, and in second chlorine atom we show these electrons in the form of stars. ठीक है स्टूडेंट. so now both chlorine atom have one electron short to acquire stable noble gas configuration or to complete its octet. so these are incomplete outer shells, 3p5 and 3p5. both chlorine has one electron short to complete its octet. so the two non-metal atoms cannot form a bond by transferring electrons from one to another. अब कह रहा है एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p4, तो इसका फुल्ली फिल्ड हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, इसका तो फुल्ली फिल्ड हो गया 3p6, लेकिन इसका क्या हो गया 3p4. अगेन दिस इज अनस्टेबल. इट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the similar atoms. so the two non-metal atoms cannot form a bond by transferring electrons from one bond to another, just like in ionic bond. ठीक है स्टूडेंट. ionic compounds में क्या होता था, electrons are transferred from one atom to another, but in this case there is no transference of electrons from one atom to another, क्योंकि आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा. इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी भी क्या रहा अनस्टेबल स्टेट में. तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं बन सकता बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टूडेंट अब ये क्या करेंगे दोनों, इंस्टेड दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स. अब ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे. क्या करेंगे, शेयर करेंगे. सो दीज टू क्लोरीन एटम्स, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, अब शेयर कर लिया. दिस स्फीयर इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन क्लोरीन एटम एंड दिस स्टार indicates the electron from another chlorine atom. now these two electrons are shared together to complete its octet. so each atom now has a full stable outer shell by sharing their कौन से electrons, incomplete outer shell electrons, and to form a bond, that bond is called a covalent bond. so covalent bond कैसे बनता है स्टूडेंट, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो, क्योंकि ट्रांसफेरेंस स्टूडेंट होती है, एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल. अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट, दोनों ही नॉन मेटल हैं. इट मीन देयर इज नो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स. सो इंस्टेड दे क्या किया इन्होंने, इंस्टेड दे शेयर देयर outer shell electrons and to make it stable and to form bond कौन सा, covalent bond. ठीक है स्टूडेंट. so the shared electrons join the atoms together. अब जो स्टूडेंट ये आपके shared electrons, इन्होंने क्या किया, दोनों एटम्स को क्या किया, they come close to each other. the shared electrons join the atoms together and this bond form is called a covalent bond. अब जो यहाँ पे force of attraction स्टूडेंट पैदा हो गई, उस force of attraction को यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, covalent bond. कैसे बना, by sharing of electrons. by sharing of electron these atoms join together and to form a covalent bond, and new force of attraction takes place between the two non-metal atoms, for example chlorine atoms, and to form a covalent bond. now definition of covalent bond. कह रहा है covalent bond was first proposed by Lewis. the bond formed between two atoms
बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दो एटम्स के बीच में, जरूरी नहीं आपके सिमिलर एटम्स भी होने चाहिए, दो एटम्स डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो बॉन्ड बना स्टूडेंट कैसे बना, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। पिछले वाले केस में क्या था, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, लेकिन यहां पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं विद ऑपोजिट स्पिन्स। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है स्टूडेंट की, इनकी स्पिन्स कैसे होनी चाहिए। फिलहाल अभी आप ये देखो कि दो एटम्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट वो क्या हो रहे हैं, दे शेयर टुगेदर। फॉर एग्जांपल AA एंड AB, electrons are shared together and to form a covalent bond. So the bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons so as to, क्या किया उन्होंने, complete their octets or duplets. Duplets सिर्फ कौन से केस में सुनो, इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन शेल। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन 1s1। नाउ अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये किसी किसी बहुत कम केसेस में होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो मोस्टली शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो कौन सी आई, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो दैट बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड ए कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट लिंकेज। एंड कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, डबल और ट्रिपल, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनलाइक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या रहा स्टूडेंट, जस्ट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे दो, चाहे तीन हो, वहां पे कोई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा। लेकिन यहां पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर स्टूडेंट एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो मींस एक एक इलेक्ट्रॉन्स A और B दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अगर स्टूडेंट डबल बॉन्ड बन रहा है A और B के बीच में, इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक A के ये वाले फॉर एग्जांपल और ये A और B के दूसरे, ठीक है स्टूडेंट, दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ये A और B कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट। तीन इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन A, तीन इलेक्ट्रॉन B आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा और क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। सो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम, ठीक है स्टूडेंट। सो हाउ इज ए कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉन, ए कोवलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So for example, these two chlorine atoms and they share their outer shell electron, कौन सा, 3p5, 3p5 of one chlorine and 3p5 of another, जो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है स्टूडेंट, हाफ फील्ड में, वो आपस में क्या किया, इन्होंने शेयर किया और क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। सो ओनली आउटर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। स्टूडेंट अब कौन से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्वॉल्व होंगे, आउटर शेल, मींस वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। सो द इनर शेल्स डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी इंक्लूडेड इन डायग्राम्स। स्टूडेंट अब डायग्राम्स में इनर इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या शो करो, आउटर शेल्स, क्या शो करो, आउटर शेल्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये 2s है और ये कौन सी है, 2p। 2s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और एक, दो, और 2p में कितने हैं, 5, 2, 4, और ये क्या आगे स्टूडेंट आपके, ये आपकी सॉरी 1s है और ये क्या आपकी 2s। 2s में कितने हैं सॉरी आपका ये आपकी, हमने क्या किया, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी क्लोरीन की, 1s2, 2s2, 2p6, क्या आ गया आउटर शेल, 3s2, 3p5। अब सिर्फ आपने क्या शो करना है स्टूडेंट, आपने 3s2 और 3p5 इनर इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की जरूरत डायग्राम में नहीं है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द कोवलेंट बॉन्ड। सो 3s2, 3p5 स्टूडेंट, ये आपका 3s है, ये वन इलेक्ट्रॉन और दूसरा 3s2 हो गया, फिर उसके बाद 3p5, ये आपका 3s2, 3p और ये आपका क्या आ गया 3p5, ठीक है स्टूडेंट। उन्होंने ऑक्टेट क्या किया, अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। सो टू कॉमन वेज टू रिप्रेजेंट ए कोवलेंट बॉन्ड एयर, तो ये क्या आ गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्या है 2, 4 और ये 6। अब इनका क्या हो गया, 2 आगे,
8 पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया स्टूडेंट। अब इस वाले केस में भी क्या है 2 4 6 और ये क्या हो गया 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस क्लोरीन ने भी क्या कह दिया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन ने भी क्या कह दिया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट आपके सॉलिड लाइन, आप एक एटम और दूसरे एटम में सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज द हाउ द कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे क्या शो किया हमने 3s2 3p5। सॉरी स्टूडेंट, इस वाले डायग्राम में हमने सारे इन इलेक्ट्रॉन्स भी शो किए थे, और इस वाले डायग्राम में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं शो ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स। कितने आउटर इलेक्ट्रॉन्स 5 + 2 7, 2 4 6 और ये आपका 7th है, 2 4 6 और ये आपका 7th है। अब दोनों ने क्या किया, जो अनपे इलेक्ट्रॉन्स थे शेयर कर लिए, अब दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके भी 2 4 6 और 8, इसके भी कितने हैं 2 4 6 एंड 8। सो बोथ हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज ड्रॉन बाय ए सॉलिड लाइन बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है स्टूडेंट, नाउ next conditions for formation of covalent bonds, number of valency electrons, the combining atom should be short of 1 2 or 3 electrons in its valency shell in comparison to stable noble gas configuration। अब स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स आप कहोगे यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास शॉर्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर कर लेगा। नो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। सो कोवलेंट बॉन्ड की क्या कंडीशन आ गई, कितने शॉर्ट होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 1 2 और 3, क्योंकि कितने बॉन्ड बनेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। द कंबाइनिंग एटम शुड बी शॉर्ट बाय 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन कंपैरिजन टू, क्या इन्होंने क्या एक्वायर करना है टू अक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, सो इन कंपैरिजन टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो एटम्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या 2 की कमी या 3 की कमी होनी चाहिए वैलेंस शेल में। ठीक है स्टूडेंट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स शुड बी 0 और वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल आपका ये क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन है, अब दोनों में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फॉर एग्जांपल इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस का आ गया स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0। सो सिमिलर एटम्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम, सो डिफरेंस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। अब 2 कंबाइनिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए और या क्या होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस स्टूडेंट ज्यादा आ गया तो क्या होगा एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे और वो आपका आयनिक कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा। सो ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस टेक्स प्लेस ना हो और सिर्फ क्या हो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पहली कंडीशन है कि वैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए कमी होनी चाहिए टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स या तो वो 0 होना चाहिए, मी सिमिलर एटम्स हैं, और यहां उनमें क्या होना चाहिए 2 एटम्स के बीच में अगर डिसिमिलर एटम है तो वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल ये ए और बी है तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वेरी स्मॉल, और अगर दोनों सेम एटम्स हैं तो क्या डिफरेंस आएगा 0। इट मींस कोवलेंट बॉन्ड आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द सिमिलर एटम्स। Third one is small decrease in energy. The approach of atoms towards one another should be accompanied by decrease of energy. ये तो स्टूडेंट वो केमिस्ट्री का रूल है कि बॉन्ड तभी बनेगा अगर एनर्जी क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि अगर एनर्जी डिक्रीज ही नहीं होगी इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो इनमें आपस में क्या होंगी रिपल्शंस, तो कभी भी आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। केमिस्ट्री का रूल है लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। अब जब ये बॉन्ड बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया कंपाउंड बन गया तो उनके पास जो एनर्जी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए स्मॉल, क्या रहनी चाहिए स्मॉल, ताकि बॉन्ड जो बने वो कौन सा बने स्टेबल बॉन्ड और कंपाउंड भी क्या हो स्टेबल हो। सो नेक्स्ट covalent bonding in hydrogen. So many non-metal elements such as hydrogen exist as simple diatomic molecules that contain covalent bonds H2। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहे how is a covalent bond formed in hydrogen? So hydrogen has only one electron in its
outer shell 1s1, its electronic configuration is 1s1. So this spherical electron is shown by one hydrogen atom and this starred electron is shown by second hydrogen atom. Now both, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, यहां पे ऑप्शन क्या होगा, डुप्लेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कंप्लीट होगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों एटम्स की नेचर क्या है, सेम, बोथ आर सेम एटम्स. सो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड. सो क्या किया दोनों ने, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या कर लिए, शेयर कर लिए, और क्या कहूं, क्या इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अब क्या बन गई, डुप्लेट. क्या बन गई, डुप्लेट. एंड बॉन्ड कौन सा बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सो ईच हाइड्रोजन एटम नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. सो ईच हाइड्रोजन एटम नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल एंड सो ईच एटम शेयर्स इट्स सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट जो आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग है स्टूडेंट, ये ऑलवेज किस में बनेगी, जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, पेयर्ड है, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे. सो याद रखना है, वैसे तो ये हम वैलेंस बॉन्ड डायग्राम में आगे वेसेपर थ्योरी आनी है स्टूडेंट, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. लेकिन यहां पे स्टूडेंट मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि जो ऑर्बिटल्स अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, ऑपोजिटली स्पिन. क्या होने चाहिए, ऑपोजिटली स्पिन, ताकि उनमें क्या हो, अट्रैक्शन हो. अट्रैक्शन होगी तभी आपका बॉन्ड बनेगा. और ये आपका 1s1 एक हाइड्रोजन का और दूसरा 1s1 दूसरा हाइड्रोजन का, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए. और ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड नहीं होनी चाहिए. तो अब इनमें क्या बन गया, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया, H2 HH. ठीक है स्टूडेंट. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया आपको वेसेपर थ्योरी की. क्या दे दी है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये शेयर हो रहे हैं स्टूडेंट, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये कौन से शेयर हो रहे हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्या स्टूडेंट, ऑपोजिट, ताकि इनमें आपस में क्या हो, अट्रैक्शन हो, रिपल्शन ना हो, क्या हो, अट्रैक्शन हो, ताकि ये स्टेबल बॉन्ड बन सके. अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज. एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा. और कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा. सो ईच एटम शेयर्स कौन सा, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ने कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाने, किन्होंने बनाने, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ने. और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, ताकि दोनों एटम्स में क्या हो, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन होगी तभी आपका ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. So the shared pair of electrons forms a covalent bond and so creates a diatomic molecule hydrogen. अब shared pair of electrons ने ये शेयर कर लिया स्टूडेंट, और क्या बना लिया, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक आपका स्टेबल डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर गया. क्यों, क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन हुई है वो किसके कारण से हुई है, इनकी जो स्पिन है स्टूडेंट वो क्या है, एक की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज, दूसरे की स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. अब दोनों ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए विद ऑपोजिट स्पिन. अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन हो गई तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स बिहाइंड. एंड अगर एनर्जी कम रह जाए मॉलिक्यूल में तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा. एंड ए क्रिएट्स ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है स्टूडेंट. सो सम मॉलिक्यूल्स कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. ये स्टूडेंट हम देखते हैं कैसे आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं. वो मैंने आपको बता दिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे डबल, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड. कह रहे हाउ डू एलिमेंट्स बॉन्ड. सो मेनी नॉन मेटल एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसे H2 Cl2 O2 F2 आपने देखा होगा. ये सारे क्या स्टूडेंट आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं. दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी बॉन्डेड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स. इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, या सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा. लेकिन ऑलमोस्ट कैसे करते हैं एग्जिस्ट, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ ये आपका क्लोरीन का केस आ गया. सो आउटर शेल में क्या है, एक एक हाफ फील्ड है. क्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 287. सो 287 नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू हैव ए कंप्लीटली फुल आउटर शेल. टू अचीव दिस क्या हुआ, it can share an electron with another chlorine atom. This creates a single bond. ठीक है स्टूडेंट, फिर से देखिए
क्लोरीन था, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 287. अब 7 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू कंप्लीट इट्स फुल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन. सो टू एक्वायर फुल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन बोथ क्लोरीन एटम क्या होंगे, दे कम क्लोज टू ईच अदर. कैसे कम क्लोज टू ईच अदर? अब जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, तभी ये क्लोरीन एटम्स कम क्लोज टूगेदर, अदरवाइज ये कम क्लोज टूगेदर नहीं होंगे स्टूडेंट. नहीं होंगे तो आपका बॉन्ड भी नहीं होगा. टू अचीव दिस इट कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉन. शेयर मीन जो उनके ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अट्रैक्ट टूगेदर, मीन्स इट कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉन विद अनदर क्लोरीन एटम. दिस क्रिएट्स ए सिंगल बॉन्ड. So now again see this, अट्रैक्शन हो रही है. देखिए स्टूडेंट क्या हो रही है, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं उन दोनों की जो स्पिन है स्टूडेंट वो क्या है, ऑपोजिट स्पिन. क्या है, ऑपोजिट स्पिन. और कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, सिंगल बॉन्ड Cl2. ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन आपका मॉलिक्यूल देख लिया आपने अच्छी तरह से, सिंगल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट. नाउ ऑक्सीजन, नेक्स्ट केस क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ऑक्सीजन 2,6. अब स्टूडेंट ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2,6 है. ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 को कितने चाहिए, 2 more इलेक्ट्रॉन्स टू हैव ए कंप्लीटली फिल आउटर शेल. टू अचीव दिस इट कैन शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा स्टूडेंट, इट कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन एटम एंड दिस क्रिएट्स ए डबल बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट, अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे. अब स्टूडेंट शेयर तभी करेंगे अगर उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट. नहीं तो ये आपके ऑक्सीजन एटम्स पास पास नहीं आएंगे. ये आपके ऑक्सीजन एटम्स हैं स्टूडेंट, दे कम क्लोज टू ईच अदर. अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑक्सीजन एटम शेयर टुगेदर एंड O2 मॉलिक्यूल फॉर्म एंड क्रिएट्स ए डबल बॉन्ड. क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हैं, बिकॉज both oxygen atoms needs 2 electrons. So each oxygen atom share 2 electrons with another 2 electrons of oxygen atom share together. Sharing कब होगी स्टूडेंट, when their electrons have opposite spin and to form molecule O2 with double bond between them. So next आ गया स्टूडेंट आपका नाइट्रोजन. क्या केस है नाइट्रोजन आपका, नाइट्रोजन 2,5. ठीक है स्टूडेंट, एंड नाइट्रोजन नीड्स 3 more इलेक्ट्रॉन्स. स्टूडेंट 2,5 है, 2,5 का मतलब है 5 को कितने चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3. सो नीड 3 more इलेक्ट्रॉन्स टू हैव ए कंप्लीटली फुल आउटर शेल. इट कैन शेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम. सो 1 नाइट्रोजन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद another nitrogen atom to acquire stable noble gas configuration. अब स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड. सो N2 मॉलिक्यूल बना, डायटोमिक मॉलिक्यूल. एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द N2 मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स. एंड 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए. जो 3 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन की स्पिन है स्टूडेंट वो आपस में क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, तभी अट्रैक्शन होगी, अदरवाइज अट्रैक्शन नहीं होगी. फिर से देखिए क्या हो रहा है, बोथ नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स कम टुगेदर. अब कम टुगेदर मींस इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन्स इन देयर ऑर्बिटल्स. ठीक है स्टूडेंट, and when they come close to each other they share their electrons and to form a N2 molecule with the triple bond between them. ठीक है स्टूडेंट, so can compounds contain covalent bonds. अब स्टूडेंट हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सारे डिस्कस कर चुके हैं. कह रहा कोवलेंट बॉन्डिंग कैन आल्सो अकर बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट नॉन मेटल्स टू क्रिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. सेम वाले देख लिए हमने स्टूडेंट, अब क्या देखने हमने, डिफरेंट नॉन मेटल्स टू क्रिएट ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड. दीज कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल. और ये भी क्या हो सकता है स्टूडेंट आपके, सिंगल, डबल और ट्रिपल. अब कह रहा है डिफरेंट की बात कर रहा है. अब हाइड्रोजन भी स्टूडेंट क्या आपका नॉन मेटल और क्लोरीन भी क्या आपका नॉन मेटल. कह रहा है हाउ इज ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट,
Cl, और ये क्या है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। और क्लोरीन की नियॉन 3s2 3p5, ये 5 + 2 कितना हो गया 7, इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और हाइड्रोजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। सो दोनों ने क्या किया फिर, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इसकी स्पिन। अब स्टूडेंट ये आपका क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, नियॉन तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिख लेनी है। ये आपका आ गया 3s2 और ये क्या आ गया आपका 3p5, ठीक है स्टूडेंट, 3p5, 3s2 3p5। अब स्टूडेंट आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ओनली 1s1, ये हाइड्रोजन है, और उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, जो आपका हाइड्रोजन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ये हाइड्रोजन है, उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, ऑपोजिट। अब इन दोनों की जो स्पिन ऑपोजिट है, ऑपोजिट स्पिन के कारण दीज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड विद ईच अदर एंड दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हो रहा है। अब स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कौन से इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होने हैं स्टूडेंट, जो हाफ फिल्ड हैं, जो हाफ फिल्ड हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वही शेयर होने हैं स्टूडेंट। ये आपके फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर नहीं हो रहे, जबकि वो आउटर शेल में हैं 3s2 और ये वाले 3px2 3py2, ये आपके वैलेंस शेल में है, लेकिन स्टूडेंट ये शेयर नहीं हो रहे। क्यों नहीं शेयर हो रहे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फुली फिल्ड, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओनली कौन सा यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 3pz1, और यहां पे कौन सा शेयर हो रहा है 1s1, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ताकि ये आपस में क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, दे कम क्लोज टुगेदर and then share their electrons and to form a stable covalent bond। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको ये कि कैसे आपके हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वैलेंस शेल के, जबकि ये 3s2 3px2 3py2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये शेयर क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फुली फिल्ड। एंड स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब मैं एक बात और बताने लगा हूं, वैसे तो ये बाद में डिस्कस होगा डिटेल में, लेकिन यहाँ अब मैंने डायग्राम बना ही दी है तो आप उसको समझ लो। स्टूडेंट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में शेयर हो रहे हैं, इनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में होने चाहिए वो वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट ये आपके 3s2 और बाकी 3p4 बचे हुए हैं, ये क्या है स्टूडेंट आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उनको नॉन बॉन्डिंग और नॉन शेयर्ड भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एंड इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल में तो हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो डेफिनेशन स्टूडेंट लोन पेयर की क्लियर हो गई आपको। लोन पेयर मींस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स which are present in the valence shell of the respective atoms but they are involved in bond formation because they are half filled orbital electrons, they are involved in bond formation, they are called bonding electrons or shared electrons। so lone pair and shared pair of electrons। स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया है। और ये एक बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, और उनकी कंडीशन क्या है, स्पिन क्या होनी चाहिए, विद ऑपोजिट स्पिन। सुन यहाँ में मैं बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। अब जो बाकी बच गए हैं, चाहे वो
वैलेंस शेल में हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, they are called non-bonding electron pairs, non-shear electron pairs and lone pair of electrons. And those electrons which are involved in covalent bond formation, they are called bonding pair of electrons or shared pair of electrons. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? So come to the point, कह रहा how is a covalent bond formed in a hydrogen chloride. So एक इलेक्ट्रॉन ये रहा स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन का, और एक आपका 3p5 मैंने आपको शो कर दिया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था 3pz। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कौन सा है? 3pz। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 3s2 है, ये आपका 3px2 है, ये आपका 3pz2 है, सॉरी 3py2 है, और स्टूडेंट ये कौन सा है आपका 3pz1। ठीक है स्टूडेंट, जो 3p में एक हाफ फील्ड बच गया था, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अब ये क्या करेंगे? दे आर अट्रैक्टेड, कम क्लोज टू ईच अदर एंड टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपकी वैलेंस शेल मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, सिर्फ 3s2, 3px2, 3py2 and last unpaired electron 3pz1. Only unpaired electron of valence shell involved in the bond formation, and this one is hydrogen. There is only one shell in the hydrogen atom, 1s1. This is a valence shell and both contain क्या होने चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्या होने चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट ये भी एक आपको याद कर लो कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आपके कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। अगर एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। ठीक है स्टूडेंट, किसी एटम के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, 3 से ज्यादा नहीं बनते। ठीक है स्टूडेंट, नाउ दीज टू oppositely spin electrons come close to each other and to form a covalent bond. ठीक है स्टूडेंट, so now they share together and to form a covalent bond. ठीक है स्टूडेंट, so hydrogen and chlorine both need one more electron to fill outer shells. Hydrogen need one electron to complete duplet, chlorine needs one electron to complete octet. So by sharing one electron each, they both have stable outer shell configuration and form a covalent bond. ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब कह रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग इन वाटर, कह रहा है कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ पे क्या था? HCl में एक ही बॉन्ड था बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन। अब स्टूडेंट वाटर आ गया, क्या आ गया है? वाटर। अब इसमें क्या होगा? एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है और एक ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आपके ऑक्सीजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देता हूँ। अब डिटेल में अब चल ही बड़े हैं तो स्टूडेंट डिटेल में चलो आप 1s2, 2s2, अब क्या आ गया? 2p, x2 ये फुली फिल्ड है, 2py1, 2pz1। अब ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई स्टूडेंट? ऑक्सीजन की। अब आ गया हमारा वाटर। ठीक है स्टूडेंट, H2O है। अब एक ये आ गया हाइड्रोजन, इसकी स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। ये आपका 1s1 है। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन, और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इसकी स्पिन उससे क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट, 1s1। अब स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका? एक बॉन्ड किसके बीच में? और H के बीच में, ये बन गया और H के बीच में बन गया स्टूडेंट बॉन्ड। अब ये दूसरा बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये दूसरा बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या एग्जिस्ट कर गया? H2O। और फिर से देख लीजिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो स्टूडेंट इनर शेल है, इसको तो आप छोड़ दो, लेफ्ट इनर शेल्स को कुछ नहीं देखना। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कौन से हैं स्टूडेंट? आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने आउटर शेल देखनी है, आउटर शेल यहाँ पे कौन सी है? सेकंड शेल है। अब स्टूडेंट ये वाले जो
2s2 और 2px2, बाकी बच गए हैं स्टूडेंट ये क्या आपके लोन पेयर्स, नॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, non-bonding pair of electrons, because they are present in the valence shell but they are not involved in the bond formation because their configuration is their configuration is fully filled, and only half filled orbital electrons make the covalent bond, and condition क्या है, their orbital electrons have opposite spin, ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट अट्रैक्ट विद ईच अदर और ये आपका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। सो क्या कंडीशन आ गई, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल एंड ओनली दोज ऑर्बिटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, देयर ऑर्बिटल्स हैव हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल, दिस इज अ सेंट्रल एटम, दिस इज ए सेंट्रल एटम, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे स्टूडेंट उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी कितने बनेंगे, 2, ठीक है स्टूडेंट। अब जो आपके सराउंडिंग एटम्स हैं ये वाले हाइड्रोजन, ये क्या स्टूडेंट आपके सराउंडिंग एटम्स, वो कितने, अब 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन इस सिंगल ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, सेंट्रल एटम जो है शेयर करेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन के इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। देन दे अट्रैक्ट टुगेदर एंड टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद देयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज shared electrons are called bonding pair of electrons, and those electrons present in the valence shell but they are not involved in the bond formation, they are called lone pair of electrons। स्टूडेंट ये लोन पेयर का कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखना बता दिया आपको कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट रिएक्टिविटी में एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है स्टूडेंट, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये देख लो कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। So compounds can contain more than one covalent bond. For example, of oxygen 2,6 need 2 more electrons, but hydrogen 1 only needs 1 more to complete duplet. So कह रहा कैसे होगा ये? So oxygen atom shares 1 electron with 1 hydrogen atom and a second electron with another hydrogen atom. So आपका जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन स्फेरिकल शेप, एंड जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, जो हाफ फील्ड है अनपेयर्ड है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार्ड। सो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये स्टूडेंट आपका 2, 4, ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका 5 और ये आपका 6, 2,6 हो गया स्टूडेंट आपका। सो बाकी क्या बच गया, अब कितने चाहिए उसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, क्या होगा स्टूडेंट आपस में शेयर करेंगे तो क्या बनेगा, एक ये वाला बॉन्ड बना और एक ये वाला बॉन्ड बना, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या बन गया आपका H2O, ठीक है स्टूडेंट, बन गया, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज ए सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आपका सेंट्रल एटम, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही एटम क्या बनेगा आपका सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, और जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो क्या बनेंगे सराउंडिंग एटम्स। सो हियर ऑक्सीजन एटम हैज मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन बिकम्स ए central atom, and hydrogen atom have less number of unpaired electrons, so that's why they become a surrounding atoms, ठीक है स्टूडेंट, H2O। now covalent bonding in ammonia, कह रहा है how do nitrogen and ammonia hydrogen form covalent bonds in a molecule of ammonia। क्या कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट आपके अमोनिया की, 2,5 एंड इलेक्ट्रॉन नीडेड कितने 3, एंड हाइड्रोजन की कितनी है 1, इलेक्ट्रॉन नीड कितना है 1 टू कंप्लीट डुप्लेट। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 5 + 3 8, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 1। अब से रेशियो ऑफ एटम्स क्या आ गई 1:3। मैंने कहा था इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, ठीक है स्टूडेंट, और आपका क्या बनेगा NH3। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट सेंट्रल एटम कौन सा है।
सो किसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन को। इट मीन्स आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका सेंट्रल एटम बनेगा। क्या बनेगा, सेंट्रल एटम। और जो हाइड्रोजन हैं वो क्या बनेंगे, सराउंडिंग एटम्स, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड क्या थी, कम। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। सो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। ये एक आ गया पेयर, ये दूसरा पेयर आ गया और ये आपका तीसरा पेयर आ गया। बिकॉज नाइट्रोजन की स्टूडेंट क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है स्टूडेंट, 1s2 2s2, ये आपका 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब स्टूडेंट एक हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, 1s1 1s1 1s1। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग कर ली, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, शेयरिंग होगी स्टूडेंट। और क्या बन गया आपका NH3 मॉलिक्यूल। और कितने बॉन्ड बने, नाइट्रोजन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स थे, 3। तो मैंने क्या कहा था, कोवलेंट बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 3। ठीक है स्टूडेंट। सो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आपके हाफ फील्ड हैं। नाइट्रोजन का ये फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन का 2px1 है और ये हाइड्रोजन का 1s1 है। ये नाइट्रोजन का 2py1 है और ये हाइड्रोजन का 1s1 है। और ये नाइट्रोजन का 2pz1 है और ये हाइड्रोजन का 1s1 है। सो 1s1 अट्रैक्टेड विद 2px1, क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड। 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2py1 ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्या बना, सेकेंड कोवलेंट बॉन्ड। 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2pz1 ऑफ अनदर नाइट्रोजन एटम, तो क्या बना, थर्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बना, सो नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 नाइट्रोजन एटम्स, और क्या बना आपका अमोनिया। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन। स्टूडेंट दैट दिस टॉपिक इज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।